Thank you for coming here. Today we all have gathered here for the Punya Tithi of our beloved founder, Shri Harshuji Advani. I would like everyone to pay their offerings with flowers to Harshuji. Please, please. बिन विवेक आनंद कहाँ, जहाँ विवेक आनंद वहाँ, जहाँ दोनों है विद्यमान। विवेकानंद शिक्षा संस्थान, शिक्षा का ये पर्व है महान। मंगलमय शिक्षा का तीर्थ है महान। बिन विवेक आनंद कहाँ, जहाँ विवेक आनंद वहाँ, यहाँ दोनों है विद्यमान। विवेकानंद शिक्षा संस्थान, शिक्षा का एक तीर्थ है महान। मंगलमय शिक्षा का एक तीर्थ है महान। पुण्य स्मरण है आज ये बताना, भाग्य में अपने है इसे पुण्य स्मरण है आज ये बताना, भाग्य में अपने है इसे मनाना। स्वप्न जिन्होंने सजाया, तन मन जीवन लुटाया, उन हर्षु अडवाणी को ना भुलाना। कण कण में वे बसे यहाँ, उनकी लिखी ये दास्तां। कण कण में वे बसे यहाँ, उनकी लिखी ये दास्तां। सर्वाधिक है उनका योगदान। विवेकानंद शिक्षा संस्थान, शिक्षा का शिक्षा का एक तीर्थ है महान। तेने कहिए जे वैष्णव जन को, तेने कहिए पीर पराई जाने। पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान ना
वैष्णवजन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णवजन तो तेने कहिए सकल लोक मां सहुने वंदे निंदा न करे के नीरे। वाच पांच मन निश्चल राखो धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए समदृष्टि ने कृष्णा त्यागी। समदृष्टि ने कृष्णा त्यागी परस्त्री जे मात रे। जिहा थकी असत्य बोले पर धन बचाले हाथ रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए मोह माया व्यापे नहीं जेने। मोह माया व्यापे नहीं जेने। दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे। राम नाम सुर कारी लागी सकल तीरथ तेना तन मारे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वन लोभी ने कपट रहित छे। वन लोभी ने कपट रहित छे। काम क्रोध निवार्या रे। गण नर संयो तेनु दर्शन करता। गणे नर संयो तेनु दर्शन करता। उदय को तरतार्या रे। वैष्णव जन तेने कहिए पीड़ पराई जाने Every year, पीड़ we पराई जाने tribute to Hashuti Advani on two occasions. On his punyatithi, that is 22nd July, and on his birth anniversary, that is on 22nd February. Last year, due to pandemic, there were very few students in the campus, and today, looking at the large number of staff and students gathered over here, it feels really happy that once again we are starting to reopen, because education was in the heart of Hashuji Advani. He started with very small school in 1962 in Chembur area for bringing up Sindhi refugees, those who had come from Sindh Prant to India and settled here in Chembur camp. And the seeds sown by him later on developed into so many schools, colleges, that today we have 26 institutions in the name of Shri Hashuji Advani. I say in the name of Hashuji Advani, but he was Nishkam Yogi. He never gave any institution
as Vivekanand Education Society's institutions. And today also, most of the institutions which are developed by him, they follow principle of Nishkam Karam. The Karam which is done without expecting anything. That is why every year we conduct blood donation camp on this day. So today also we have Borivali Blood Center is organized blood donation camp in collaboration with our NSS unit. So I really thank Vare sir and Borivali Blood Donation Camp members, those who are present over here. Our trustee, Shri Malkani ji, Rita madam for arranging of this program, More sir for setting that proper ambience, and the bhajan which he has selected is completely the portrait of Shri Hashuji Advani. So I request all of you to follow the path which was shown by Hashuji Advani always in your life. And if you follow that path, definitely you will become a great human being one day. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your kind words. Now I would like to invite our Administrative Executive Head, ma'am, Rita Vazirani, ma'am, to say a few words. Thank you. My humble pranam to Ma Saraswati, Swargiya Hashuji, respected Malkani ji, and all family members of VES present here. Today's day, really today is a great day, which is being celebrated as Nishkam Divas. और I'm thankful to Santosh ji, such a lovely VES song, जिसमें हशू जी के बारे में सब बताया गया है. How this institute everywhere, though he is not there, but he is there. We can feel him. And जो उसके बाद जो उन्होंने जो भजन गाया, जैसे मैडम ने भी बताया कि जो हशू जी के सिद्धांत थे, जो उनका स्वभाव था, पूरा डीप चीज को वर्णन करता है. वो एक सही कर्मयोगी थे और मलकानी जी ने तो उनके साथ समय बिताया है, तो उनको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है. कई बार उन्होंने हमारे साथ शेयर भी किए हैं. असरानी जी ने भी शेयर किए हैं उनके बारे में, क्या उनका स्वभाव था, कितने सिंपल थे. So really I admire the simplicity, and I think that is the best quality. और उनका जो मोटो था always serve, love and give, सेवा करना, प्यार करना और देते रहना. तो उन्होंने ये जो शिक्षण संस्थाएं शुरू की, जो ज्ञान की ज्योति जो चिंगारी लगाई है और जो आगे जो फैल रही है, और आशा रखते हैं कि आप सभी के सहयोग से उन्हीं के आदर्शों के आगे चलते हुए ज्ञान की ज्योत आगे चलती रहे, चलाते रहे उसी भाव के साथ. निष्काम भाव, इस गीता का श्लोक भी जो है, कहते हैं आप कुछ भी काम करो, फल की इच्छा मत रखो, फल अपने आप मिल जाता है. कर्म का सुझाव है, जैसे आप बीज बोएंगे वैसे पाएंगे. तो सर्व, लव एंड गिव. आई थिंक आज के दिन पे मैं जो बच्चे ब्लड डोनेट कर रहे हैं, उनमें ये जो भावना है सेवा की भाव, क्योंकि वो दूसरों का दर्द समझते हैं कि ब्लड जो है कितना इम्पोर्टेंट है. और ऐसे ही हशू जी का जो भाव था, जैसे ये सॉन्ग लगाया, पीर पढ़ाई जाने दे, ये सॉन्ग से तुम्हें बचपन में पहुँचे, क्योंकि स्कूल में हमारा रोज ये भजन होता था. बहुत प्यारा, मेरा फेवरेट भजन है. तो जो दूसरों का दर्द समझना, अपने लोगों को तो सभी प्यार करते हैं, अपने बच्चों के, अपने फैमिली को, लेकिन वो बियॉन्ड योर फैमिली और अनजाने का कि आप दर्द समझे, वो भावना डेवलप करें, जैसे आत्मानुभाव कहते हैं, तो ही वो जिंदगी जीने का मकसद है. तो एंड ऑफ द डे अगर आप अपने आप से पूछे, आज मेरे किसी के चेहरे पे मुस्कान आई, आज मैं किसी को मदद रूप रहा, आज मैंने क्या पाया, अगर उसके आंसर गलत है तो आपकी सही रास्ते पे है, आप जिंदगी के सही रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं. तो ये एक्सरसाइज जरूर करें और ये भाव रखते हुए
जब सही कहा जाता है सेवा भी करनी है, जब आपको किसी के लिए कुछ करना है, सेवा करने के लिए पहले आपने खुद स्वस्थ रहना है। किसी को प्यार देने के लिए आपके पास प्यार होना चाहिए। आपके पास जब कुछ है तभी आप किसी को दे सकते हो। अगर आप ही स्वस्थ नहीं है तो आप किसी को मदद नहीं हो सकते हैं। तो अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने आप से प्यार करें, फील योर हार्ट विद लव। और बहुत अच्छी चीज़ है जो अशोक जी से सीखने की, तो डिटैचमेंट वैराग्य। कभी किसी चीज़ को, जैसे मैडम ने बताया, अपना नहीं करते रहे दूसरों के लिए। तो ये किसी भी सिचुएशन में हम लोग क्या होते हैं, स्ट्रेस होता है, ग्रे होता है, तनाव होता है, क्योंकि हम हर चीज़ में हम उसके साथ अटैच हो जाते हैं। तो हर सिचुएशन में अगर हम डिटैचमेंट का प्रिंसिपल लगाए, कि हम जब मूवी देखते हैं, टीवी देखते हैं, उधर मर्डर का सीन भी होता है, तब हमें कुछ नहीं होता है। कोई बहुत सेंसिटिव होता है तो आंखों से पानी आता है, तो हम डिटैच करें वो तो टीवी में होता है। इससे हमारी लाइफ में हर एक सिचुएशन के साथ जैसे हम डिटैच रहेंगे, विल बी हैप्पी, एंड इफ यू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सर्व, लव एंड गिव, definitely we will be a wonderful human being, and this would be a wonderful place to live for all of us. Thank you. Thank you so much, ma'am. I would like to thank first of all, our trustee, Shri Malikani ji, for obeying his presence. Thank you, sir. And if anyone would like to say a few words on our beloved Ashu ji. हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इंस्पेक्टर मलकानी जी, मेरा अमिताभ नंबर, मैडम दीपा वजीरानी, आनंद अचारी सर, एंड डियर फ्रेंड्स। So whenever I look at this photo, I remember the year 1952. शायद सबकी आप लोगों को भी पता नहीं होगी ये बात, जो मैंने भी सुनी है, बट आपको के साथ शेयर करना चाहता हूँ। 1952 में आप सबको पता है कि ये आर्टिकल 370 आ गया पिक्चर में, और तब कश्मीर को एक अलग तरह का स्टेटस मिल गया है। कश्मीर वॉज हैविंग ए सेपरेट फ्लैग। तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, वन नेशन वन फ्लैग, कि भारत के अंदर दो अलग अलग फ्लैग नहीं चलेंगे। और वो आंदोलन को वो लेके कश्मीर पहुंचे थे, जब कश्मीर जाने के लिए वीज़ा लगता था और अलाउड नहीं था कि आप कश्मीर जाओ और ट्राई कलर का अपना तिरंगा फहराओ। तो उस आंदोलन में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी गए थे, तब उनके साथ एक यूथ था दैट टाइम का, और वो हमारे प्यारे हंसू जी थे। जब आर्टिकल 370 एबॉलिश हुआ, दैट वाज अ रियल ट्रिब्यूट टू हंसू जी, बिकॉज ही वाज द पार्ट ऑफ दैट टीम which was saying कि two flags in one nation will not be allowed at any cost. And you know, when the 370 was abolished, I was remembering sir कि yes, in 1952 also he was for the nation, he was working for the nation, he devoted his entire life for the nation. Whatever we see today, a number of institutes under VS umbrella is his contribution. So every day whenever we are entering in this campus, we should keep one thing in mind, कि from our side we should try to contribute something, whatever best possible from our side, without expecting anything of remuneration, reward, appreciation, anything from the VES. But as a member of VES, we should always try, and that will be our real tribute to sir. Thank you all. Thank you